Stop the habit of reading books for long days. Stop the habit of reading blogs, listening or attending seminars, podcasts, watching YouTube videos, daily press, newspapers, and other social media platforms like Instagram, scrolling up and for the sake of gaining knowledge. इसे मैं कहता हूं intellect masturbation. Why it is called intellect masturbation? Because here you are getting second hand knowledge और second hand experience और किसी और की बताए हुए ओपिनियंस या फिर किसी और के एक्सपीरियंस को या फिर किसी और के मेथड्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हो रेदर देन गेनिंग ऑल दीज नॉलेजेस एट फर्स्ट हैंड. इस वीडियो में मैं कुछ अपने ही क्वेश्चंस को रेज अप करूंगा और अपने ही क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करूंगा सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ नॉट टू यूज दीज प्लेटफॉर्म्स फॉर गेनिंग नॉलेज. व्हाई डू सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल हैव लेस कॉमन सेंस एज कंपेयर टू इलिटरेट पीपल? क्या होता है कि ये जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग हैं ना, इनके पास कॉमन सेंस ही नहीं होती या फिर बहुत कम कॉमन सेंस होती है एज कंपेयर टू जो अनपढ़ लोग होते हैं या फिर जो डेली वर्कर्स होते हैं या फिर जो डे टू डे लाइफ में रहते हैं बट दे आर अनेबल टू गेट एक्सेस टूवर्ड्स बुक्स. क्या होता है कि ये जो लिटरेट सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग हैं उनके पास एक कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है रियल लाइफ को डील करने का. They feel so stressed, so messed up with life. Why do so-called intelligent people aren't able to enjoy life? Why do they seem frustrated all the time? Why do so-called intelligent people aren't street smart? मीन्स कि वो रियल लाइफ या डेली सिचुएशंस या फिर जो भी अगर वो किसी मार्केट में जाते हैं या कहीं पे भी अगर किसी अननोन जगह पे जाते हैं, दे आर नॉट स्ट्रीट स्मार्ट. उन्हें ईजिली वहाँ के लोकल लोग ठग लेते हैं, दे गेट लूटेड. वाई डू सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल आर रॉन्ग अबाउट एवरीथिंग रिगार्डिंग लाइफ? वाई डू सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल लैक creativity? Why do so-called intelligent people behave lazy, stupid and coward when it comes to the work which is not under their domain? Why do they feel less confident regarding that? Why do so-called intelligent people have hatred toward everything? They feel like they are very stressed up, they are very fucked up, they are like in hurry. Every time they feel like they are in hurry. I don't know. Like something is missing, like they are in a race which they have to compete. I don't know. Why do so-called intelligent people think their every problem solution exists online? Like अगर उन्हें कोई भी दिक्कत हो रही है ना तो सबसे पहले they go to Google, YouTube or something else. They want to check all these things. They want, सपोज उन्होंने कुछ लेना है तो सबसे पहले जाएंगे गूगल पे और उसके सारे रिव्यूज देखेंगे, सारा चीज देखेंगे. वो रिव्यूज फेक भी तो हो सकते हैं, who knows? So why do they think like कि without using first hand experience they prefer this second hand experience that exists online? Why do so called intelligent people feel stressed, depressed and unhappy all the time? Not all the time, maybe, but most of the time they feel this. Why do so-called intelligent people aren't capable of figuring out their real life solutions? Why do so-called intelligent people have no guts or to speak against the authority, their boss, their organization, their government, against politicians? Why don't? आपने कभी भी देखा होगा जितने भी मोस्ट ऑफ दी जो क्या कहते हैं स्पेशली इंडिया में ये जो क्या बोलते हैं इन्हें धरने होते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस ये इलिटरेट लोग ही कर रहे होते हैं.
लिटरेट लोग नहीं कर रहे हैं, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट लोग कभी धरने पे नहीं इतना बैठ रहे होते या फिर इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक कभी ऐसे धरना नहीं करते। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे ऐसे धरने देख सकते हो इंडिया में, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, बट यू कैन अंडरस्टैंड कभी भी वो अपने बॉस के अगेंस्ट जाएंगे नहीं। 1000, 10,000, 20,000 भी अगर एम्प्लॉयज़ है तो एक भी स्टैंड नहीं लेगा अगेंस्ट देयर बॉस। वाई दे डोंट हैव गट्स, वाई दे can't speak against authority? Why these so-called intelligent people are slaves of conventional methods? Why can't they find a new way of getting paid? Means there are few exceptions, but most of the people are like भेड़ चाल, जो जॉब्स हैं जो सोसाइटी में स्टैब्लिश्ड हैं वही करनी है, उसी के पीछे जाना है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स देख लो, सबने वही करना है, सो कॉल्ड इंटेलिजेंट सबने वही क्रैक करने हैं। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, बहुत ही रेयर इंडिविजुअल होते हैं जो ऐसे होते हैं। फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर्स और कोई स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, ये बहुत ही कम लोग होते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट पीपल दे डोंट हैव गट्स टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, दे आर जस्ट want a stable job, a stable position. Why do so-called intelligent people are the most corrupt people? Why they are able to do anything for money? Suppose if a guy is earning 50,000 in one company, if another company is paying 55,000, he will go there. 60,000 another place, 70,000 another place, 80,000 another place. Why they are not trustful? Why they are most corrupt people? Like they do this thing for greed. You will find most corrupted people in the regime of this so-called intelligent. In this video I will talk about how these online sources like books, social medias, watching YouTube videos, attending lectures, seminars, and these news channels and these all so-called media houses are very dangerous for your overall growth and makes you dumb. Here I am just declaring that I am not supporting illiterate people, I am not promoting anti-education, I am just against the method of seeking knowledge these people do all the time, these so-called intellect people. I will talk about the reason behind their motivation to do this stuff, and I will talk about why and how they failed in using those knowledge in their real life. First of all, I'll talk you about what I am referring here as so-called intellect people. So यहाँ पे मैं दो तरीके के so-called intellect people की बात करूँगा। First मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे लोग या फिर ऐसे जो स्टूडेंट होते हैं 7th 8th 9th 10th से ही चल जाते हैं, इस भीड़ चाल में लग जाते हैं। टाइम पे उठते हैं, टाइम पे खाते हैं, सुबह जल्दी जल्दी उठ के स्कूल जाना, टाइम पे पहुंचना, या फिर कुछ स्टूडेंट होते हैं जो टाइम पे भी पहले पहुंच जाते हैं, जो हमेशा एक पंक्चुअल, डिसिप्लिन्ड और सबलाइम काइंड स्टूडेंट होते हैं ना, जिन्हें जो टीचर बोलती है, जो सोसाइटी बोलती है, जो उनके बॉस या हाई अथॉरिटी के लोग बोलते हैं वैसा एग्जैक्टली करते हैं या फिर उससे भी बेटर करते हैं। समझ रहे हो किन लोगों की बात कर रहा हूँ? जिनके मोस्ट एक एवरेज निकाल लो, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। जैसे मैं लोगों की बात कर रहा हूँ उनमें भी एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट और या जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पीपल। उनके मार्क्स आएंगे 80% से अबव हमेशा ही, हर एग्जाम में 9th 10th 12th बोर्ड एग्जाम, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, दे ऑल आर सुप्रीम, लाइक दे आर वेरी गुड इन देयर, लाइक उन्हें ना अपना पूरा CV तैयार करना होता है कि यार कुछ भी ना रह जाए। अगर उनके CV में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी आ रहे हैं ना जो कभी भी किसी लायक नहीं है, कभी भी कहीं पे भी उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है या फिर उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी उसमें वो अपना 200% देंगे जस्ट बिकॉज टू इम्प्रूव देयर CV। ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंटेलेक्ट जो होते हैं ये सोसाइटी ने ऐसे प्रिपेयर कर रही होती है कि इन्हें एक फिट 9 to 5 जॉब करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल इन्हें स्कूलिंग में ही, स्कूल्स में ही या फिर कॉलेजेस में ही
एक बेकार सी जो हैबिट होती है ना, सुबह 6 बजे उठना, 5 बजे उठना, मेरे हिसाब से वो बेकार ही होती है। उस हैबिट को वो अडेप्ट करते हैं और वो हैबिट उन्हें इसलिए प्रिपेयर की जाती है क्योंकि उन्होंने बाद में कंपनीज में यही जाना है। क्योंकि अगर वो पहले हैबिचुअल नहीं होंगे तो कंपनी में कैसे जाएंगे, कैसे काम करेंगे, है ना। तो दे आर वेरी गुड इन दैट। अपने सीनियर्स की, अगर वो एक अच्छे एम्प्लॉय बनते हैं तो अपने सीनियर्स की, कलीग्स की बहुत अच्छे से मतलब बातें मानना, बॉस ने जो कहा है वैसे ही करना, चाहे उन्हें बॉस ओवरलोड कर दे, कभी भी वो रिजेंटफुल नहीं होंगे, कभी भी अपने एंगर या फ्रस्ट्रेशन को ओपनली बाहर नहीं करेंगे, कभी भी अपनी किसी भी टाइप की जो होते हैं ना एंग्री टाइप जो फीलिंग होती है वो अपने बॉस के सामने निकालेंगे नहीं। दे आर वेरी सबलाइम टुवर्ड जो कहते हैं सो कॉल्ड ट्रेडिशनल वेज होते हैं। तो वो क्या करते हैं, ऑफिस पे टाइम पे जाना, ऑफिस का काम पूरा करना, इवन ओवर वर्क करना, संडे को भी हमेशा ऑफिस में रहना, मतलब कि दे आर लाइक दैट, ओके। और दे आर वेरी नाइव टाइप ऑफ पीपल, दे आर वेरी डिसिप्लिन, पंचुअल एंड दे डू वर्क। जैसे कि उन्हें जितना बोल दिया जाए ना कि ये करना है, दे विल नेवर क्वेश्चन, अच्छा इतना करना है, ओके सर, यस सर। लाइक ये एक मोरालिटी होती है। बाद में बताऊंगा किस दिन कितनी टाइप की मोरालिटीज होती है और कैसी होती है, कैसे फंक्शन करती है। इस वीडियो में अभी सिर्फ यही बात करते हैं जो फर्स्ट टाइप ऑफ जो ये सो कॉल्ड इंटेलेक्ट लोग होते हैं। ये लोग होते हैं, ये अपने वर्क की डेडलाइन को ना बहुत ही रिलीजियस तरीके से फॉलो करते हैं। डेडलाइन है उससे पहले ही काम करके दे देंगे। स्कूल का असाइनमेंट है, कॉलेज का असाइनमेंट है, टाइम टू टाइम असाइनमेंट देना, कभी भी असाइनमेंट लेट नहीं होएगा, कभी भी असाइनमेंट ओवरड्यू नहीं होएगा। और अगर ये स्टूडेंट होते हैं तो स्टूडेंट के टाइम पे क्या करते हैं, पूरा दिन पढ़ेंगे। इनका पढ़ने का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा 10 घंटे एवरेज, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 आवर्स, इतने घंटे पढ़ते हैं। पहले स्कूल में भी इन्हें ऐसे ही सिखाया जाता है। स्कूल जाते हैं, स्कूल में 5-6 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद घर आएंगे, थोड़ा देर लंच किया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर पढ़ने बैठ जाएंगे। पढ़ने बैठे, सारा होमवर्क कंप्लीट किया, उसके बाद भी दे फील लाइक ओह समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। They start again reading another thing, another subject, or maybe subject that doesn't matter for them, but they read another books like fiction or something. They want to utilize their whole 15 or 16 hours a day into this so-called virtual world. Okay, maybe I know these are very good for academics. I'm not against that, but academics के अलावा भी they are all time their head is like this into books. They don't want anything and they have so many reasons for doing that. I will explain those reasons in details later on in this video. तो इन्होंने ना एक ऐसा अपना एक यूनिवर्स क्रिएट कर रखा होता है जिसमें इन्हें सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं इससे इंफॉर्मेशन कंज्यूम करनी है। दे आर जस्ट कंज्यूमर ऑफ दिस यूजलेस इंफॉर्मेशन। सम इंफॉर्मेशन आर गुड, बट इन्होंने एक हैबिट बना रखी होती है कि अगर खाना भी खाना है ना तो कुछ पॉडकास्ट करते हो या फिर कुछ लेक्चर सुनते हुए खाना है, या कान में ईयरफोन। ओ दे आर डूइंग सो मच ग्रेट थिंग, ओ माई गॉड। और उन्होंने सोने से पहले भी कुछ वर्ड्स या कुछ ऐसी टेक्निक्स लाइक कुछ सीरीज या फिर कुछ भी ऐसे लेक्चर्स लगा रखे होते हैं कि सोने से पहले भी 1 घंटा आधा घंटा है देख के कंप्लीट करके ही सोना है। दे प्रोमिस टू देयर गॉड लाइक आई विल नॉट स्लीप विदाउट कंप्लीटिंग दिस टू डू और चेकलिस्ट। ओके, टेड टॉक देखेंगे या फिर कोई सेमिनार या किसी बड़े रिसर्चर का, या जो भी उनकी अकॉर्डिंग, उनके हैबिट के अकॉर्डिंग, या फिर कोई इंग्लिश लेक्चर सुनने लगेंगे या फिर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, कुछ भी मीन्स कि उन्होंने पूरा दिन बांध रखा है कि आज तो मैंने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतनी एक पूरी जो होती है ना, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी ही है। ऐसे लोगों को आप बुक वॉर्म भी बोल सकते हो, या फिर जो हिंदी में बोलते हैं ना किताबी कीड़े, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो अपने हिसाब से। लोगों ने, सोसाइटी ने बहुत नॉर्म्स निकाल रखी। अब मैं सेकंड टाइप के जो सो कॉल्ड इंटेलेक्ट लोग होते हैं ना उनकी बात कर रहा हूँ। ये लोग कौन होते हैं, ठीक है, इन्हें भी समझना। ये लोग वो होते हैं जिनका खुद का इंस्टिंक्ट फर्स्ट टाइप के सो कॉल्ड इंटेलेक्ट लोगों की तरह ही होता है,
लेकिन ये कुछ अदर एक्टिविटीज करते हैं सो दैट कि इन्हें, क्योंकि ना इन्हें पता होता है कि जो ऐसे किताबी कीड़े होते हैं ना, इनकी कुछ उतनी ज़्यादा टोर नहीं होती, उतना ज़्यादा हाई स्टेटस नहीं होता इन फ्रेंड सर्कल, ओके। बट एकेडमिक्स इन्हें भी पता है कि करना वही है, तभी तो एकेडमिक्स अच्छा होएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये फेक मतलब अदर जो काम करते हैं ना, मीन्स की जो भी मतलब पढ़ाई के अलावा भी ये कुछ कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ लोगों को शो ऑफ करने के लिए कि हाँ हम भी भाई कुछ करते हैं, हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम तो और भी काम करते हैं। बट एक्चुअल में ये कर रहे वही होते हैं, जस्ट इन्होंने कुछ ना ऐसे ऐसे छोटी छोटी गेम्स पकड़ रखी होती हैं। बट मैं बताता हूँ वहाँ पे भी इनकी हिपोक्रेसी जो होती है पकड़ी जाती है, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। ये जो सेकंड टाइप के सो कॉल्ड इंटेलेक्ट लोग होते हैं ना, इनके इंस्टिंक्ट जो होते हैं, उनका सो कॉल्ड जो उनका स्टेबल या फिर रिलैक्स्ड नेचर जो होता है ना, वो ऐसा होता ही नहीं है ना। तो ये अदर एक्टिविटीज वाला नहीं होता, पर ये अदर एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कुछ भी सिंगिंग में फेक इंटरेस्ट जनरेट करना सीखते हैं, डांसिंग में फेक इंटरेस्ट जनरेट करना सीखते हैं, या फिर कुछ स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल खेलने लगेंगे, टेबल टेनिस खेलने लगेंगे, क्रिकेट खेलने लगेंगे, फुटबॉल खेलने लगेंगे। जस्ट मतलब ना आपका उन्हें पता, आपको ना पता लग जाएगा कि ये लोग कैसे हैं। दे आर डूइंग फेक थिंग्स, जस्ट दे वांट टू शो देयर प्रेजेंस इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिली फ्रेंड्स, लाइक कि हम ना थोड़े कूल हैं, हम पढ़ते भी हैं और हम ये सब एक्टिविटीज भी करते। फॉर एग्जाम्पल आप ना पता लगा लोगे, जैसे कि ना ये स्पोर्ट्स में या कहीं पे या किसी एक्टिविटीज में जैसे रनिंग, जॉगिंग या कुछ भी अदर एक्टिविटीज में होंगे, बट यू विल फाइंड कि वो वहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। ये फिर भी बुक्स और ऐसे ऐसे सो कॉल्ड जो इन्होंने अपना वर्चुअल वर्ल्ड बना रखा है ना, उन्हीं का डिस्कशन करने रहेंगे, ठीक है। किसी फिलोसफर की बातें करने लगेंगे, कुछ ऐसे इंटेलेक्ट बात करने लगेंगे। दे आर नॉट टोटली इनटू अदर एक्टिविटीज। इनका मैं एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे कि दो टाइप के अगर रिच लोग हैं ना, तो रिच लोग के हिसाब से बताता हूँ। ये मतलब अभी मैं उस इंटेलेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस समझा रहा हूँ कि ये फेक चीज़ें कैसे करते हैं ना। जैसे कि बहुत सारे रिच लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनके पास बहुत पैसा होता है, ठीक है। तो उन्हें लगता है कि जो स्टडी है ना, ये मैं स्टडी जो कर रहा हूँ या फिर मैं एकेडमिक्स मेरे को ज्वाइन करनी है, ये वो उन्हें एक्चुअल जो मीनिंग है ना, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज और टू गेट मोर स्मार्ट और सम काइंड ऑफ टू डू वेरी नोवेल थिंग, उसके लिए नहीं कर रहे होते हैं ना, तो पैसे कमाने के लिए करते हैं। जे जस्ट कि उन्हें ना कोई ये ना बोले कि ये सब जो रिच लोग हैं उन्हें कोई ये ना बोल दे कि देखो भाई तुम एक इलिटरेट इंसान हो, यू नो नथिंग अबाउट एनीथिंग, ओके। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुमने पढ़ाई नहीं कभी तुम स्कूल गए हो, कभी तुम कॉलेज गए हो, जस्ट ये ना बोल देना कोई। इसलिए ये फेक टाइप की स्टडी करते हैं, ऐसे कोर्सेज ले लेंगे, ठीक है, पास हो जाएंगे, कभी कॉलेज नहीं जाएंगे, कभी स्कूल नहीं जाएंगे, कभी चलेंगे कभी नहीं चलेंगे, या पैसे देके डिग्रीज ले लेते हैं ना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये डिग्री लेते हैं। इसी तरीके से ये जो सेकंड टाइप के इंटेलेक्ट लोग होते हैं ना, ये भी फेक इंटरेस्ट अदर चीज़ों में जनरेट करते हैं सो दैट कि लोग उन्हें कूल बोले, है ना। इसी तरीके से जो रिच लोग होते हैं, एक सेकंड एग्जांपल भी दे रहा हूँ, ये क्या करते हैं, उनके पास पैसे तो बहुत होते हैं ना, बट उन्हें कोई ये ना बोले कि यार तुम तो बाप के पैसे पे खा रहे हो ना, तो ये कुछ छोटी मोटी जॉब कर लेंगे, है ना, और उस जॉब कर लेंगे, जाएंगे डेली, और या फिर कभी कभी जाएंगे, या फिर जॉब चेंज कर लेंगे, कभी ये करने लगेंगे, कभी वो जॉब करने लगेंगे, जस्ट फॉर दी सेक की सोसाइटी उन्हें ये ना बोले कि है ना। या फिर उनका बिजनेस होएगा तो और भी वेल गुड है, तो वो बिजनेस में भी कभी कभी हाथ बिठाएंगे, पर ऐसा नहीं है। दे विल नॉट डू देयर 100% देयर। अगर वो जॉब भी करेंगे फॉर द सेक ऑफ जॉब, वो कभी भी उस जॉब में भी ना कुछ अच्छी पोजीशन पे नहीं होंगे, या फिर अच्छी पोजीशन पे जाएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ फेक तरीके से कर रहे थे ना, जस्ट कि सोसाइटी उन्हें ये ना बोले कि देखो भाई तुम फ्री का खा रहे हो, है ना। सो टुडे आई एम गोइंग टू ब्रेक दीज हैबिट्स with my hammer with very strong reasoning why these methods are so stupid, why they are dumb, why they have no knowledge about real life, why they are so stressed, why they are fucked up. So इस वीडियो में मैं 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा बिल्कुल डिटेल्ड में, जो ये पूरी वीडियो होने वाली है। फर्स्ट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, वो है कि मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि मैंने सो कॉल्ड इंटेलेक्ट पीपल जो बोला है किसे बोला है, वो मैंने आपको बता दिया, 2 टाइप्स के होते हैं ना। सेकंड मैं ये बता रहा हूं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं कि जो ये कन्वेंशनल मेथड्स फॉलो करते हैं, या फिर ये ऑनलाइन लर्निंग के जो 24 घंटे बुक्स में घुसे रहते हैं ना, इनके क्या डेंजर्स हैं।
थर्ड मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो लोगों की मेंटेलिटी है, बुक्स में घुसे रहना या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, ये मेंटेलिटी कैसे बनी या फिर ये मेंटेलिटी कैसे बनती है, कैसे ये लोग इस मेथड में घुस जाते हैं और कैसे ये पूरा का पूरा ट्रैप है, बहुत ही बड़ा ट्रैप है, ठीक है, बहुत ही एक फैंटेस्टिक तरीके से बुना गया, जो बोलते हैं ना वेब, वो है ये, और कैसे ये लोग इसमें फंसते हैं। फोर्थ मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्सिक्वेंसेज एंड डेंजर्स ऑफ फॉलोइंग दीज कन्वेंशनल मेथड्स एंड दीज ऑनलाइन रिसोर्सेज। और फिफ्थ मैं बताऊंगा सोल्यूशन ऑफ दिस होल प्रॉब्लम, माई मेथड और द नेचुरल बायोलॉजिकल फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड्स फॉर गेनिंग नॉलेज।